Sir, NABARD examination is now around the corner, and sir, please tell us the list of some important government schemes which we cannot leave if we're targeting this year examination. This is the most common question which many of you guys are asking me at this point of time. So guys, here we are with the video of 75 most important schemes for NABARD Grade A 2025 examination. Now guys, in this video we will be catering to the common doubts that many of you are asking us, like weightage of government schemes. Why this government scheme is such a important thing for NABARD Grade A aspirant, because without that we always say clearing NABARD Grade A will become a tedious task. Then how you should target or how you should prepare the government schemes, we will talk about that in this video. We will also talk about the list of 75 most important government schemes and the list that I am providing you, how you can cover these government schemes. This is what I will also be telling you in this specific video. But before I proceed with this video guys, an important thing for all of you, as of now, if you have not looked at the previous year question paper, so guys, we are providing you the PYQs absolutely free of cost. The link for that is given in the description below. You can download our NABARD Grade A guidebook where you will be getting the solved PYQs. Along with that guys, you will be getting the decoded syllabus of non-merit section as well as the general awareness part of the examination, and you will also be able to start, or you will be also be able to getting some tips regarding your strategy preparation here. So the link is given in the description below and it is absolutely free. Please take the help of that for understanding this examination. Now first of all, let's try to understand the weightage of government schemes in this examination. If I talk about government schemes guys, they play a very important role, because if you look at the paper of the NABARD in the past 3 years, you can see here there were 19 questions that were in 2022, there were 30 questions that was in 2023, and there are 22 questions that was in 2024. Now this is out of 100 questions. You can see the whole merit section of 100 questions, 30%, 22%. But if I talk about current affairs, so there were around 55 questions, 57 questions, 57 out of 57, 22%, which means around and around your 40 to 45% of current affairs can be tackled only from one section, that is government schemes. So that is why I said government schemes you cannot miss. Not just for phase 1, you can see the phase 2 weightage also, 50 marks, 14 marks and 28 marks. Not just objective, descriptive. Both ways the schemes will be like a boon for you to clear this examination. Now guys, the next question, how to prepare government schemes. For that guys, I can say that you can take the reference of this specific video that I have already made with you, where I have discussed with you about the important things like what should be the strategy. Weightage here, I have told you about that. What are the important dimensions which you should always keep in your mind when you are preparing government schemes. I have also told you the important sources which you guys can refer if you are targeting the government schemes. And then guys, the most important thing, that is the list of 75 most important schemes. TKG. So we'll be coming to that. But guys, with regards to how to prepare, I have already taken a session. The link is given in this PDF that will be provided to you on our Telegram channel. It has also been given in the description below. So click on that specific link and you can get an idea that how you should target the government schemes. Now comes the most important thing, the list of this 75 most important government schemes. But to come to this list guys, we have done a lot of brainstorming. So I just want to clarify that what are the important criteria that we have kept in the mind when we talk about the list of the most important government schemes. So you should always be understanding that if a scheme is being launched, there is an update, there is a detailed article, that is detailed article in Press Information Bureau is given about that specific scheme, or there is some sort of milestone that has been achieved by that specific scheme. That are some important criteria which we should always keep in mind when we are shortlisting the schemes. So this is what we have also done for you. We have shortlisted, we have brainstormed ourselves that what are the important schemes which you should not leave. And guys, I'm just telling you 75, but the list here is more than 75 schemes. So stay here. Then the second thing, how to cover the schemes. So guys, how to cover the schemes, we are providing you our YouTube links. That is absolutely free of course. Just click on this link and you guys can get that specific video. There are some schemes for which I have not taken a YouTube session, but do not worry, in the upcoming days I will be bringing session for those specific schemes also. And if you are a subscriber of our EduTap regulatory bodies, if you are a subscriber of our EduTap course, these are available in our Schemes tab magazine. So these things are covered in our magazine guys. You guys can take a reference of that also. Okay, but now let's try to understand the list of the schemes, from where you can, in which month they were, and from where you can
assess the specific schemes here. Now, first and the foremost thing, guys, there are some certain set of 7 to 8 schemes which you cannot leave at all. Cannot leave at all because they are clearly defined in the syllabus of NABARD examination. They are MG Narega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, National Rural Livelihood Mission. Then it is being written as rural housing. So Awas Yojana Gramin will be here. Swachh Bharat Mission Gramin, urban, both are important. Then I would say it is talks about drinking water and sanitation. So Jal Jeevan Mission will be here. Then because rural housing is being talking about, so I said if you're talking about Awas Yojana Gramin, Awas Yojana urban should be there, and then it will be Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. These are some important set of government schemes which you cannot leave. ठीक है जी. एंड देन दीज आर द स्कीम्स गाइस जिसके लिए आपको जितना इन डेप्थ आप पढ़ सकते हैं. जैसे नरेगा स्कीम अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप बजट में पढ़ रहे हैं, सर्वे में पढ़ रहे हैं, तो जो भी उनके बारे में लिखे आपको पता होना चाहिए. आप एनआरएलएम पढ़ रहे हैं तो आपको आरबीआई गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए. तो जो भी इनका स्टैटिक कंसेप्ट है आर कवर्ड इन दिस वीडियो. फॉर द रीसेंट पार्ट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अवर रिविजन सेशंस, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अवर स्कीम स्टेप मैगजीन दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू. वहां से आप इसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट पकड़ सकते हैं. ठीक है, तो आगे आते हैं. इसके अलावा मैंने जो स्कीम्स उठाई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आई हैव टेकन इट मंथ बाय मंथ. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट स्कीम्स. दैट इज आई वुड से फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की स्कीम है. अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिली थी. पीएम श्री स्कीम अगेन बिंग सीन इन न्यूज. ठीक है जी. देन इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट. देन गाइस मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने ये 4 स्कीम्स है जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं. So in the upcoming week, we are going to take session on these specific schemes, that is Shipbuilding Financial Assistance Scheme, Maritime Development Fund Scheme, Shipbuilding Development Scheme and कपास क्रांति मिशन. तो ये चारों स्कीम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं. हाँ, as of now I have not taken a session, but do not worry. In the upcoming week, you will be getting session on those in our YouTube session, in our YouTube channel. एज वेल एज इफ यू आर पार्ट ऑफ अवर कोर्स, तो स्कीम स्टेप में ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर यहां पे मैंने नहीं की तो आपको यहां पे हमारे स्कीम स्टेप डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, वहां से पढ़ सकते हैं. ठीक है जी. फिर आता है जी पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम है. प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना, जनजातीय पीएम जनमन स्कीम, अगर मैं बात करूं ट्राइबल अफेयर्स की जनमन स्कीम और पीएम जुगा स्कीम दोनों इंपॉर्टेंट है. नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस दिवस मनाया गया था अक्टूबर में. एज वेल एज मैं बात करूं तो नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, पिछले साल क्वेश्चन भी आया हुआ है नाबार्ड में, तो दैट इज आई वुड से दिस इज इंपॉर्टेंट. पीएम सेतु स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड, तो ये भी आपको हमारे स्कीम स्टेप में मिल जाएगा, बट रिसेंटली आई वुड कवर दैट इन माई यूट्यूब सेशंस. तो डो नॉट वरी, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं दोस्तों, काफी मेजॉरिटी ऑफ स्कीम्स मैंने यहाँ पे कवर की हुई हैं, बट जो मैंने नहीं की हैं इन द अपकमिंग डेज आई विल बी टेकिंग दी स्कीम्स ऑन प्रायोरिटी, और मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्कीम्स आपको मिल जाएंगी. देन पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्टर है नाबार्ड के लिए, तो वो आपको देखना है. देन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिटेल्ड आर्टिकल था. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंपॉर्टेंट है जी. परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चर स्कीम से इंपॉर्टेंट है. मत्स्य संपदा योजना के 5 साल पूरे हुए हैं, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, माइलस्टोन भी है, और वैसे भी स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है. पीएम किसान स्कीम, फेवरेट स्कीम ऑफ नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ठीक है जी. नमस्ते स्कीम, सोशल जस्टिस की कुछ स्कीम्स है, बट उसमें से नमस्ते काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी उस पर डिटेल आर्टिकल देखने को मिला है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, सो दैट इज व्हाई आई वुड से दिस इज इंपॉर्टेंट. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज्यादा अगर आप बात करें ना कि सिर्फ स्कीम्स के कॉन्टेक्स्ट में, बट ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट है ग्रीन हाइड्रोजन एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पर एम्फेसाइज कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को, कैसे हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन पे हमें वर्क करना है, दैट इज द थिंग हियर. सो मैंने यहाँ पे आपको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लिंक प्रोवाइड किया है, बट इसी के साथ जब आप स्कीम को देखोगे, इसी के साथ ही मैंने इसकी सब स्कीम्स भी कवर की हुई हैं, तो आप प्लीज उनको भी देखना. जैसे साइड स्कीम है, ग्रीन हाइड्रोजन हब है, दैट इज अगेन समथिंग यू कैन वॉच और टेक अ हेल्प फ्रॉम अवर यूट्यूब सेशन हियर. देन गाइस इफ आई टॉक अबाउट ई-नाम, अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम यार, ई-नाम स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. पीएम विकास स्कीम इंपॉर्टेंट है. ठीक है. माइनॉरिटी फेस की स्कीम है, बट अगर बात करूं अगस्त से लेकर अक्टूबर तक हर मंथ न्यूज में देखने को मिली है, डिटेल्ड आर्टिकल्स आए हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है. तो दीज सॉर्ट ऑफ स्कीम्स जो कहीं ना थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मिनिस्ट्रीज में जाती हैं, बट अगर न्यूज में है, क्वेश्चन पूछने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वो आपको यहां से हेल्प मिल जाएगा. देन आई वुड से धन धान्य कृषि अभियान
लॉन्च हुई है स्कीम रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 पोषण अभियान रिसेंटली करवाया गया है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। पीएम विश्वकर्मा योजना जिस पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, तो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स अगेन बीइंग कवर्ड विद यू। जन आरोग्य योजना, इसमें अपडेट तो है, अपडेट अब काफी पुराना हो चुका है, बट आई वुड स्टिल से कि वो अपडेट क्योंकि पिछले साल एग्जाम के बाद हुआ है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। मातृ वंदना योजना इंपॉर्टेंट, डिटेल्ड आर्टिकल आया था। पीएम स्वनिधि अपडेट है जी, पूरी की पूरी स्कीम ही रिवैम्प की गई है, तो इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड अगेन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ नाबार्ड, ठीक है जी। फिर आ जाए पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसी साल लॉन्च हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाती है। तो ये तो स्कीम्स थी जो मैंने अक्टूबर मंथ में आपके लिए कवर की हैं। देन आ जाते हैं सितंबर मंथ में, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम हो गया, ठीक है जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है। डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, तो 10 साल पूरे डिजिटल इंडिया मिशन के भी तो इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व स्कीम इंपॉर्टेंट है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम। ये स्कीम मैंने आपके साथ अगर जो मैंने सितंबर का रिवीजन सेशन लिया है ना, वहां पे कवर की है, बट आई विल ट्राई टू टेक अ सेपरेट सेशन फॉर दैट ऑल्सो। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जब भी हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की बात करते हैं, इट्स अ कोर स्कीम ऑफ फंडिंग, सो दैट इज इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग स्कीम। देन इफ आई टॉक अबाउट नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम्स, ठीक है जी। नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम हो गया, मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हुए हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। नेशनल SC/ST हब स्कीम, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब स्कीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दे आर कवर्ड इन अवर स्कीम स्टैप डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। बट डू नॉट वरी, अपकमिंग डेज में हम लोग प्लान करेंगे कि इनको आपको आपके यूट्यूब सेशंस में भी इनको हम लोग यहाँ पे कवर कर दें। मिशन वात्सल्य इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है जी। मिशन वात्सल्य हो गया। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। स्टार्टअप इंडिया के भी अभी माइलस्टोन है, ईयर्स पूरे हुए तो इंपॉर्टेंट है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान विच वाज अर्लियर नोन एज पीएम जुगा स्कीम, तो जो यूट्यूब सेशन आपको मुझे दिखेगा उसमें मैंने ना वहां पे पीएम जुगा लिखा हो, बट डू नॉट वरी, इट्स द सेम स्कीम, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है। ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और नाबार्ड के केस में आप ट्राइबल अफेयर्स की जो भी मिनिस्ट्रीज जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ रहे हैं उनको मत छोड़िए, ठीक है जी, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग हियर। इसके बाद मैं बात करूंगा मेरिटे स्कीम, लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम मेरिटे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अपडेट इज देयर, बिकॉज रिसेंटली कुछ रिवैम्पिंग हुई है, टारगेट्स मीट हुए, तो वो इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। जनधन योजना अगेन माइलस्टोन हैज बीन कंप्लीटेड। देन पीएम कुसुम स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज, इंपॉर्टेंट स्कीम है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन अगेन जी रिसेंटली लॉन्च स्कीम है। विकसित भारत योजना लॉन्च हुई है अभी। पीएमएफएमई इंपॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के कंटेक्स्ट में, सेम गोज विद किसान संपदा योजना, दोनों ही फूड प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। फिर आता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, बिकॉज अभी मैं आपका फिशरीज सेक्टर की स्कीम्स कर रहा हूं, तो HIDF इज ऑन द ट्रॉट, जल्दी ही ये भी कर देंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इंपॉर्टेंट है जी। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट अगेन इंपॉर्टेंट। फसल बीमा योजना फेवरेट स्कीम है जी। PME ड्राइव स्कीम अपडेट हुआ है इसमें स्कीम में, बिकॉज स्कीम में चेंजेस हुए थे, तो इंपॉर्टेंट है। भारतीय जन औषधि परियोजना अगेन डिटेल्ड आर्टिकल व सीन इंस्क्यूज। PM इंटर्नशिप स्कीम पिछले साल लॉन्च हुई थी, तो इंपॉर्टेंट है। PM मुद्रा अपडेट हुआ है जी बजट में, ठीक है। अटल पेंशन योजना हो गया, अब अटल पेंशन योजना हो गया, नेशनल पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, तीनों पेंशन स्कीम इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं ये बोलूंगा अगर आपके पास है तो 2 स्कीम्स और कर लेना, एक आती है जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना। एक्चुअल में तो स्कीम वैसी मई मंथ में न्यूज में थी, ज्यादा अभी न्यूज में नहीं है, बट अगेन आई वुड से क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर्स की स्कीम्स हैं, बेसिक हैं, तो कर लीजिए। स्किल इंडिया मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यार स्किल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे, काफी ज्यादा रहे इनिशिएटिव्स हैं, तो माइलस्टोन भी है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। इसी के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो वो भी लिस्ट में है, वो आपको करनी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सोशल जस्टिस की अटल वायु अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, दोनों स्कीम्स न्यूज में थी, तो वो आपको करनी है, ठीक है जी। PM मित्रा अगेन आई वुड से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, तो 2 ही टेक्सटाइल की 3 स्कीम्स इंपॉर्टेंट होगी, PLI स्कीम और PM मित्रा स्कीम हो गया टेक्सटाइल सेक्टर के, और कपास मिशन जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, दैट्स इंपॉर्टेंट। देन आई वुड से गाइस देयर वर सम अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन, चेंजेस हुए थे यहाँ पे, ठीक है डी। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, वहां पे अपडेट्स हुए थे। गोकुल मिशन में जुलाई में अपडेट हुआ था। मेक इन इंडिया के देयर वाज अ सैनिटरी सेलिब्रेशन हियर, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम हो गया। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग हो गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन हो गया, ठीक है। तो दे आर कवर्ड इन अवर स्कीम स्टैप डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। देन
लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ड्रोन दीदी स्कीम हो गया, ठीक है जी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हो गया, देन आई वुड से रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड ऑपरेशन स्कीम हो गया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम में अपडेट है, तो ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना स्कीम फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस। 86 स्कीम्स यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, एंड आई वुड से दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लिस्ट जो हमने अभी तक आपके लिए बनाई है एज ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो हमने एनालाइज किया है। अब क्योंकि इसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके बाद स्कीम्स अपडेट नहीं होगी, पर अगर इन द मंथ ऑफ नवंबर कोई भी मेजर स्कीम लॉन्च होती है, कोई मेजर स्कीम अपडेट है, स्कीम्स न्यूज में आ रही हैं, सो आई वुड से यू शुड टेक केयर ऑफ दो स्कीम्स, क्योंकि नवंबर के एंड में हमारा सेशन एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो सकता है। तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स न्यूज में है, यू शुड बी थॉरो अबाउट दैट थिंग बिकॉज द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू। सो आई वुड अगेन से दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट विच वी हैव मेड एज ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब अगर इसके अलावा कुछ बच्चों के मन में होगा सर क्या इसके बाहर से भी हम पढ़ सकते हैं, देखिए अगर आप लास्ट 5 मंथ्स को टारगेट करते हैं दैट इज वेरी गुड, बट आई वुड से दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। इसके अलावा जैसे ट्राइबल अफेयर्स की बाबू कुछ स्कीम्स हैं जो जुलाई में न्यूज में है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना न्यूज में है, ठीक है ना, देन आई वुड से आपका हाँ बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना दैट वाज सीन इन न्यूज। इसके अलावा जो आपकी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो डर लग रहा है, तो आई वुड से दिस शुड बी योर प्राइम लिस्ट दैट यू शुड टारगेट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द थिंग दैट यू आर आस्किंग मी, द लिस्ट ऑफ 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम गाइस, ठीक है जी। कवरेज कैसे करना है ये भी बता दिया है आपको, ऑलरेडी वीडियो बना के बताया है कैसे करना है, कहाँ से करना है। सो अगेन विद दैट एज आई वाज टेकिंग यू कि अगर आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों जो स्कीम्स आपकी नहीं है मैं आपको आप स्कीम्स टैब से कर सकते हैं, तो वो आप हेल्प कैसे ले सकते हैं, जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ एडुटैब, दैट इज edutap.in। हियर गाइस इफ यू गो टू द नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, ठीक है जी, नाउ वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग यू अ फेज 1 प्लस फेज 2 लाइव क्रैश कोर्स विच इज गोइंग ऑन हियर, जहां पे हम आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं, लाइव क्लासेस करवा रहे हैं, आपको सॉल्व पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। तो जो आपको लाइव कोर्स में जो मटेरियल दिया जा रहा है वहां पे एक डेडिकेटेड स्कीम्स का डॉक्यूमेंट है, दैट इज बाय द नेम ऑफ स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट। तो आप वहां पे जाके उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हो। जितनी स्कीम्स की लिस्ट मैंने आपको ये दी है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, दीज ऑल स्कीम्स आर कवर्ड इन दैट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ यूट्यूब इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, आप कर सकते हैं, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, बट जिन स्कीम्स में आपको लग रहा है कि नहीं यूट्यूब पे हुई तो दैट कैन बी टैकल्ड फ्रॉम अवर स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट। इवन वी आर कवरिंग दो स्कीम्स इन लाइव क्लासेस ऑल्सो, तो लाइव क्लासेस में आके भी जो स्कीम्स की लिस्ट मैंने आपको दी है ये भी हम आपके साथ वहां पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने पढ़ा हुआ है मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो आई वुड अगेन से कि डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस हियर, फॉर दैट यू गाइस कैन गो विद अवर फेज 1 प्लस फेज 2 टेस्ट सीरीज। एंड इफ समहाउ यू आर अ स्टूडेंट हु इज टारगेटिंग कि मुझे अभी नहीं मुझे नेक्स्ट ईयर टारगेट करना है, तो अगर आपको बिल्कुल इनिशियल बिल्ड करना है तो यू गाइस कैन गो विद अवर गोल्ड कोर्स ऑल्सो, ठीक है जी, फेज 1 प्लस फेज 2 गोल्ड कोर्स। और अगर आपको लग रहा है नॉन मेरिट हो चुका है सिर्फ मेरिट करना है तो गो विद द सिल्वर कोर्स। तो गाइस व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो तो यहाँ पे अभी आपको फ्लैट 72% ऑफ मिल रहा है, बट दिस डिस्काउंट्स कीप ऑन चेंजिंग, तो आप जल्दी जल्दी इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मुझे नाबार्ड के साथ किसी और एग्जाम की तैयारी भी करनी है, सो देन ऑल्सो वी आर ऑफरिंग यू दी स्पेशल थिंग्स लाइक आरबीआई इरडाई नाबार्ड कॉम्बो इज देयर, ठीक है, फॉर फेज 1 प्लस फेज 2 फॉर फेज 2 ओनली, सो यू कैन यूटिलाइज दीज कोर्सेज ऑल्सो फॉर योर preparation. So this is all from my side guys. I hope this video is really fruitful for you because at this point of time many of you are in the need of this thing, एक list मिल जाए कि इसको तो अच्छी तरह करना है, so I think that would really help you in your preparation journey. Still guys, anything in your mind, any doubt in your mind, we are always there for you. Just drop us an email that is at hello@edutap.co.in, or you guys can also have a call with us on the number 81462 07241. So wishing you all the best guys. अब लिस्ट आ चुकी है, फटाफट में तैयारी शुरू कर दीजिए, अपनी स्कीम्स को अच्छी तरह पढ़िए और स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। चलिए, ऑल द बेस्ट।